Let us start our new exercise 7.11 using properties of definite integrals. Okay, it can be done by other ways also, but if we use properties of definite integrals, then it will be much more easier to solve these questions. So let us see how to use properties of definite integrals. First question, integration of 0 to pi by 2 cos square x dx. Okay, so I have given it first equation. Now I am using one property, 0 to pi by 2 cos square. I am putting pi by 2 minus x in place of x. Okay, and the property which I have used here is 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx. जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं उसको लिखिए ज़रूर. एक तो आपको लिखना ही है, उसके मार्क्स रहते हैं, और दूसरा ये है कि वो प्रॉपर्टी भी आपको याद हो जाती है. सो this will be equals to 0 to pi by 2, and cos 90 minus theta we know that it is sin theta, so this will be equals to sin square x dx. So adding equation 1 and 2, 1 and 2, so we get I plus I 2i equals to right hand side 0 to pi by 2 cos square x dx plus 0 to pi by 2 sin square x dx. So these two can be written as cos square x plus sin square x, because both the integration have same limit, and we know that cos square x plus sin square x is 1. Okay, and integration of 1 is x. Put the limit here, 0 to pi by 2. So this will be equals to pi by 2 minus 0 or pi by 2, as we are having 2i equals to pi by 2, so I will be equals to pi by 4. Pi by 4. This is our final answer. Question number 2. Integration of 0 to pi by 2 root over sin x upon root sin x plus root cos x. Root sin x plus root cos x dx. Let us take it as first equation. So solution, again I am using the same formula which I used in question number 1. So I equals to 0 to pi by 2 root over sin pi by 2 minus x divided by root over sin pi by 2 minus x plus root over cos pi by 2 minus x dx. So this will be equals to 0 to pi by 2, and again we sin 90 minus theta is cos theta, so this is cos x, and denominator becomes root cos x plus root sin x dx. Equation number 2, and write the formula here which I have used. 0 to pi by 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx. Okay.
यहाँ फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, I equals to. So again adding equation 1 and 2, so I plus I 2I, since limit in both equation 1 and 2 both are same, so both the equation can be taken under the same integration. So 0 to pi by 2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हो गया आपका रूट ओवर साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस सेकंड रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों एक ही बात है ये, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ओके, तो दोनों का एलसीएम सेम होगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम होगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स एंड न्यूमरेटर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ओके, डी एक्स, तो ये कैंसिल, सो 0 to pi by 2 1 dx, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x, लिमिट आ गई 0 to pi by 2, आप लिमिट पुट कर दीजिए pi by 2 माइनस 0, ये आ गया pi by 2, 2i equals to, तो अगेन I will be equals to pi by 4 and what is I is our question, so this is the final answer. Okay, question number 3 and 4 similar to question number 2. So let us start question number 5, which is very important. This type of one question is always asked in your annual examination. So what is the question? Integration of -5 to +5 modulus of x plus 2 dx. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम मॉड का इंटीग्रेशन तो करते नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा मॉड का। तो मॉडुलस एक्स का डेफिनेशन आपको मालूम है, दिस इज इक्वल्स टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। ओके, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमको। तो इस मॉड के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल -2 एंड माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0 और एक्स इज लेस देन -2। तो इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो -2 से जब बड़ा है तो पॉजिटिव और -2 से छोटा है तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये ब्रेक हो जाएगा -5 टू -2 में और ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 dx प्लस -2 टू +5, इसमें मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी x प्लस 2 dx। बाकी काम तो इंटीग्रेशन का रह गया बस, इसमें माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया x² / 2 और 2 का हो गया 2x -5 टू -2 प्लस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x² / 2 प्लस 2x और लिमिट हो गई -5 टू -2, सॉरी -2 टू 5, ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, -2 टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2² 4/2 -4 माइनस नेगेटिव, लोअर लिमिट जब भी लगाते हैं ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म रहे तो ये हो जाएगा 25/2 -10
प्लस 25/2 प्लस 10 और माइनस ये हो गया 4/2 माइनस 4। ओके, आप चाहे तो इनको सॉल्व कर लीजिए या पूरा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ये हो गया माइनस 4/2 प्लस 4 प्लस 25/2 प्लस 10 प्लस 25/2 प्लस 10 और माइनस 4/2 प्लस 4। ओके, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकते थे। इट इज़ अप टू यू हाउ यू कैन हैंडल इट। सो माइनस 4/2 मीन्स दिस इज माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 10 प्लस 10 20 20 प्लस 8 28 and 25/2 is 2 times 25/2। ओके, तो ये हो गया, ये दोनों हो गया 4 4 10 10 को यूज़ कर लिया और कुछ बचा माइनस 4/2 माइनस 2 और ये माइनस 4/2 एक और बच गया माइनस 2। ओके, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। ओके, सो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 28 प्लस 2 2 कैंसिल आउट 25। ओके, सो ये कितना हो गया 24 रह गए और ये 25, तो आंसर आ गया 49। सॉरी, एक मिस्टेक किया हमने यहाँ पर। जब इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन किया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बट बाहर एक और माइनस है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन, तो ये 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 4 प्लस 4 8 आएगा यहाँ पर, ये होगा 8। ओके, 8, तो 8 माइनस 4 ये आ गया 4 प्लस 25, तो ये आंसर होगा 29। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n dx। अभी देखिए, ये इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इजी कर लेंगे। ये इंटीग्रेबल फॉर्म में इसको ले आएंगे फंक्शन को। तो कैसे आएगा इंटीग्रेबल फॉर्म में? जो फॉर्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 को सॉल्व करने में यूज़ किया उसी को यूज़ करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला? 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ओके, इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, a 1 है तो ये x को लिखना पड़ेगा हमको 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 1 माइनस x ब्रैकेट पावर n dx। तो ये आ गया आपका 0 to 1 1 माइनस एक्स, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया x पावर n। तो देखिए ये अब हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है। ये x पावर n माइनस एक्स पावर n प्लस 1। ठीक है, अब ये तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है x पावर n का। इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। बस लिमिट रखनी है आपको 0 to 1, और जब अपर लिमिट रखेंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 पावर एनीथिंग 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 पावर एनीथिंग 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0। सॉल्व कर लीजिए, n प्लस 1 n प्लस 2 का एलसीएम हो गया। आप फाइनल आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर ये n प्लस 1 n प्लस 2 एलसीएम आ गया, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 माइनस 1 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं हम। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, तो x की जगह क्या करेंगे हम, π/4
माइनस एक्स, ओके, डी एक्स। फॉर्मूला लिख लीजिए जो यूज़ कर रहे हैं आप, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आ गया आपका 0 to पाई बाई 4 एंड लॉग 1 प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो 10a मीन्स 1045 1 माइनस 10b मीन्स 10x अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10a मीन्स 1045 1 हो जाएगा और 10b क्या हो गया 10x dx। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 to पाई बाई 4 लॉग एलसीएम आ गया 1 प्लस 10x, टी हो गया 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x, ओके, dx। माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 0 to पाई बाई 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x। सो अप्लाई फॉर्मूला, logarithm formula here, so 0 to pi by 4 log m by n is log m minus log m, okay। so 0 to pi by 4, ये log 2 तो कांस्टेंट है ना, ये सेपरेट कर दे रहा है इनको, log 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख दिया 0 to pi by 4, और ये लिख लेते हैं 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 0 to पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। अब इक्वेशन 1 से देखिए ये क्या है आपका, फिर से क्वेश्चन बन गया, ओके। सो i इक्वल्स टू ये आ गया आपका log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे हम 0 to पाई बाई 4 की, और ये क्या बन गया आपका फिर से i। सो इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, i प्लस i मीन्स 2i इक्वल्स टू log 2, और ये लिमिट रखी हमने पाई बाई 4 माइनस 0। सो i इक्वल्स टू 1 बाई 2 log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 इज पाई बाई 4। सो द फाइनल आंसर विल बी 1 बाई 8 log 2, ओके। आई क्या है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो इंटीग्रेशन करना था। एक प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे हम जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा, ओके। तो देखिए, तो बार बार हर क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको, तो एक बार मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 0 to पाई बाई 2 log sin x, log sin x, या आप इसको हटा सकते हैं 0 to इसको पाई बाई 2 को, हमको ये प्रूफ करना है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, this is equals to minus पाई बाई 2 log 2 और पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये प्रूफ करना है। log sin x dx 0 to पाई बाई 2 की लिमिट में इसका इंटीग्रेशन ये तीनों के इक्वल होता है, ओके। तो ये बहुत सारी जगह में आपको इस क्वेश्चन का, इस रिजल्ट का यूज़ होता है, इसीलिए एक बार इसको मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कम मार्क्स का आता है तो फॉर्मूला लिखेंगे, और 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है तो आपको इसको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट। i इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, equation number 1. Same formula which we are using continuously, log sin, ये x की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, ओके। formula which I am using here is 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx,
तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो देखिए ये फर्स्ट से ये हमारा ये सेकंड आ गया पूरा। ओके, आई इक्वल्स टू, अब थर्ड लेके आएंगे तो 1 प्लस 1 कर दीजिए, 1 प्लस 2 कर दीजिए, आई प्लस आई इज 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्टकट भी करेंगे हम, बार बार जो है दोनों इक्वेशन को लिख के फिर वो एक ही लिमिट के अंदर लिखने की बजाय डायरेक्ट हम वो काम कर सकते हैं। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स dx। So log m into n, log m into n is log sin x into cos x, log m into n equals to log m plus n। तो log m plus n था, उसको हमने लिख दिया log m into n। ओके, सो 0 to pi by 2 log sin x into cos x। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ 2 से डिवाइड किया है यहाँ पर और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा उससे 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x। ओके, साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। लॉग m बाई n का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लॉग m बाई n का फॉर्मूला अप्लाई किया था। सो 2i इक्वल्स टू क्या आ गया, ये दोनों आ गए है ना, दो टर्म आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट टर्म में 2x इक्वल्स टू t, देन 2dx इक्वल्स टू dt। ओके, एंड लिमिट when x equals to 0 then t equals to 0 also, and when x equals to pi by 2 then t equals to, x की जगह यहाँ पे पाई बाई 2 आप रखिए इसमें, तो 2 कैंसिल, क्या आएगा पाई। ओके, तो ये आ गया, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0 से लिमिट 0 ही आई थी t की, और पाई बाई 2 रखने से t की लिमिट पाई मिली है। लॉग, और ये हो गया साइन t, और dx की जगह dt, और ये तो हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन था, log 2 बाहर लिख दिए, 0 टू पाई बाई 2 1 dx। ओके, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये 2 है, ये समझ जाइएगा, इक्वल्स टू। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमको मालूम है, हम इसमें पुट कर सकते हैं, बट इस फर्स्ट टर्म में देखिए एक और हम कुछ यूज़ करेंगे, एक और फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। कौन सा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन t dt, माइनस ये लॉग 2, चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं, माइनस लॉग 2, और 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 2। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, यहाँ पर यूज़ किया है 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx, 2 टाइम्स 0 टू a fx। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू fx dx। व्हेन, इसका कंडीशन क्या था, इसका कंडीशन था फॉर्मूला का, इफ f ऑफ 2a माइनस x इक्वल्स टू fx। तो इस क्वेश्चन में भी लॉग साइन है ना, यहाँ पे इस पे रख के देखना है आपको, t की जगह हमने क्या रखा, पाई माइनस टी। So we know that pi minus t in second quadrant, so log sin 180 minus theta sin theta, तो ये क्या रहेगा, sin t रहेगा। तो ये फंक्शन चेंज हुआ क्या, आपका फंक्शन चेंज नहीं हुआ है ना, नेगेटिव साइन नहीं आया, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। अदरवाइज इसकी जगह क्या आ जाता, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो उसकी तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता, 0 हो जाता। ओके, तो ये हमने इसमें चेंज कर लिया। सो
2i इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी। सो बाई P0 फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी। टी को आप x में लिख दीजिए, है ना, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे x कर दीजिए, ओके, माइनस लॉग 2, और ये x की लिमिट यहाँ पे रख देते हैं, पाई बाई 2 माइनस 0, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, ये लास्ट लाइन हमारी क्या थी, 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ये आ गया, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, और 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स, सॉरी क्या है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ किया हमने, क्योंकि 2i इक्वल्स टू 2i आ जा रहा है, वो तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, है ना। एक मिस्टेक हमने किया था, देखिए यहाँ पे 2x इक्वल्स टू टी, 2dx इक्वल्स टू डी टी, 2dx इक्वल्स टू डी टी। सो dx इक्वल्स टू डी टी बाई 2 आना था, ओके, और ये फर्स्ट में बस रखे तो ये डी टी बाई 2 आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या आता, एक बाई 2 पहले से ही रहता है ना, डी टी बाई 2, तो ये 1 बाई 2 आएगा, यहाँ पर ये 1 बाई 2 हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ 1 बाई 2, तो ये आ गया हमारा, ये 1 बाई 2 है, ये 1 बाई 2। अब देखिए ये फिर से हमारा वही क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, 1 बाई 2, और एक और था, जब ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया इसमें 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी, तो ये क्या था, 2 टाइम्स, यहाँ से देखिए 2 टाइम्स 0 2 है, तो ये न्यूमरेटर में 2 और आ गया था, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, अब ठीक हो गया। तो ये 1 बाई 2 ये नहीं आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये 1 बाई 2 की जगह कुछ नहीं है, तो ये फिर से ये क्या रह गया यहाँ पे, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और ये पार्ट क्या आया था आपका, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। देख लीजिए ये सेकंड, ये आ रहा है कि नहीं सेम, यहाँ पे log 2 और पाई बाई 2 माइनस 0 क्या आ गया, पाई बाई 2, ये तो 2i इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, i इक्वल्स टू, सॉरी प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया था, ये पाई बाई 2 log 2, तो 2i माइनस आई क्या बन गया, i इक्वल्स टू, ये माइनस साइन है, माइनस पाई बाई 2 log 2। ये थर्ड प्रूफ हो गया आपका, ओके, ये थर्ड प्रूफ हो गया। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2 पावर माइनस 1, इसको आप ये माइनस 1 लिख दे तो log m पावर n यूज़ कर लेते हैं, है ना, m पावर n, इफ n log m इक्वल्स टू, आप ऐसा लिखते हैं ना, log m पावर n, ये वही तो किया है। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये तो देखिए एक के हमारे पास फिर रिजल्ट क्या आ गया, देखिए, सो दैट्स वाई 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2 और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 log 1 बाई 2। ये हमारा एक रिजल्ट प्रूफ हो गया, जिसको कि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से सीख जाइए आप लोग, ओके। अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, log sin 2x dx। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 0 टू पाई बाई 2 2 log sin x माइनस
लॉग साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, है ना। ये भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th के, बार बार हम बोलते हैं, इसको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो ये आ गया 2 साइन x, 2 log साइन x माइनस log m इंटू n इंटू पी, log m इंटू n इंटू पी, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p, बाहर माइनस का साइन है तो इसीलिए माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया माइनस log साइन x और माइनस log cos x dx। तो ये बन गया आपका 0 to पाई बाई 2 log साइन x माइनस log साइन x, ये आ गया आपका log साइन x माइनस log 2 माइनस log cos x dx। सभी को हम सेपरेट कर लेते हैं, चलिए 0 to पाई बाई 2 log साइन x dx माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन किसका होगा 1 का, लिमिट 0 to पाई बाई 2 में होगा इंटीग्रेशन, माइनस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। अब देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला था अभी प्रूव किया था हमने 0 to पाई बाई 2 log साइन x log साइन x dx इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। ये फॉर्मूला प्रूव किया था, है ना। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, log 2 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट क्या आ गई 0 to पाई बाई 2, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस log 2 और ये आ गया पाई बाई 2 माइनस 0, तो फाइनल आंसर हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 log 2, ये इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस बहुत मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से सीखेंगे आप। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसका यूज़ हो। ओके, हाँ 16 में भी यूज़ होगा, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16, 0 to पाई log 1 प्लस cos x, तो i इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आप इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करिए 11th का, log 1 प्लस, है ना, ये 1 को एलिमिनेट करना है तो इसको लिख दिया हमने 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, सॉरी 0 to पाई है क्वेश्चन में, तो ये 0 to पाई कर लेते हैं, ये 0 to पाई हो जाएगा, 0 to पाई log 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई log 2 dx माइनस 0 to पाई cos स्क्वायर, सॉरी log cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन तो आप समझ गए होंगे, बार बार यूज़ हो रहा है, यही आ रहा है। log 2 1 का इंटीग्रेशन, log 2 कॉमन चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 to पाई की लिमिट में माइनस। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए इस वाले पार्ट के लिए लेट x बाई 2 इक्वल्स टू t, so x equals to 2t, dx equals to 2 dt, and when x equals to 0, so t equals to 0, and when x equals to pi, then t equals to x equals to pi, then यहाँ जहाँ सपोज किया वहाँ रखिए, पाई रखेंगे तो t क्या आ गया आपका, ये आ गया पाई बाई 2। एक्चुअली हम क्यों ये सब कर रहे हैं, इसको हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उस फार्मूले में हम लेके आ रहे हैं, तो 0 to पाई बाई 2 log, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर x बाई 2 को हमने सपोज किया था t, और dx आया था हमारा 2 dt,
एक काम और करना था, log m पावर n इसमें यूज़ कर लेना था पहले ही, चलिए कोई बात नहीं। log 2 और ये आ गया पाई -0 और ये हो गया -0 to पाई बाई 2 log m पावर n हो गया ये, तो इसको आप लिख सकते हैं आप 2 log cos t dt। ओके तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका, पाई log 2 आया यहाँ से तो फर्स्ट टर्म और -2 टाइम्स, देखिए ये आ गया 0 to पाई बाई 2 log cos t dt। आप चाहें तो इसको x के फॉर्म में लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास पाई log 2, इसकी वैल्यू क्या है -पाई बाई 2 log 2। ओके तो ये आ गया पाई log 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2, तो ये आ गया 3 पाई बाई 2 log 2। एक मिस्टेक हमने फिर से किया है, dx इक्वल्स टू 2 dt, dx इक्वल्स टू 2 dt ये रखना था हमको। ओके और हमने क्या रख दिया है, dx इक्वल्स टू dt रखा है ओनली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 2 और आएगा, है ना, ठीक है। और तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, और इस 2 को मल्टीप्लाई करना ही भूल गए थे हम यहाँ पे 4, तो 2 2 ज़र 4, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 बाई 2 हो गया। ओके 4 बाई 2 हो गया। और कुछ यहाँ पर, हाँ, और log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, तो ये प्लस का साइन था, सॉरी, ओके ये प्लस का साइन था और ये प्लस का साइन था, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर, तो ये 2 2 ज़र 4, तो ये आ गया पाई log 2 माइनस 2 2 ज़र 4, तो 2 पाई log 2, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा -पाई log 2। ओके तो ये बहुत केयरफुली करना है, कई बार हम बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हुए भी हम छोटे छोटे मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाता है। ओके चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया था, 16 हो गया, और एक चलिए छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से देखते हैं। 11 इंटीग्रेशन ऑफ, हमेशा आई लिख के आप स्टार्ट कीजिए इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व करते हैं, -पाई बाई 2 टू +पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx, ये ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx 2 टाइम्स, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f(x) dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। if f is even function means f minus x equals to plus fx, otherwise it will be equals to 0. Okay, remember that, otherwise it will be equals to 0 if f minus x equals to minus fx और f is odd function। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fx क्या आपका साइन स्क्वायर x है, fx साइन x होता तो ऑड फंक्शन होता, क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये साइन स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं आप लोगों को ये। तो ये f माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आया आपका, फिर से एफ एक्स आया, दैट्स वाई दिस इज इवन फंक्शन। तो ये आ गया i इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अब एक कॉस स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपने किया था पहले ही, ठीक। तो फिर से वही मेथड से हम इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 2
माइनस एक्स स्क्वायर था डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a, ये यूनिवर्सल फार्मूला, ये सब में लग जाता है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। सो 2 टाइम्स ये आ गया 0 to पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो i प्लस आई क्या हो गया आपका 2i, एडिंग 1 प्लस 2 कर रहे हैं इक्वल्स टू 2 कॉमन है ना, दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट में लिख दे रहे हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आ गया आपका 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ओके, सो 2x इन लिमिट रख देंगे 0 to पाई बाई 2 की लिमिट है, तो ये 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया पाई, 2i इक्वल्स टू पाई। सो i इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो ये ऑड इवन वाला जो फॉर्मूला था उसको हमने यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका, i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन पावर 7x है यहाँ पर, साइन पावर 7x dx। इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हैं क्या, 0। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, अभी ये सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 इफ f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पावर इवन था तो वो प्लस हो गया था, f माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स आ गया था, बट यहाँ पे ऑड है, पावर क्या हो गया ऑड, इसीलिए इस टाइप से बनेगा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ओके, लेट अस सी सम अदर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, तो इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम, i इक्वल्स टू 0 to पाई, ये हो गया x की जगह रख दिया हमने पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, जो यूनिवर्सल फार्मूला मैंने बताया 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वही उसको यूज़ किए है ना। फॉर्मूला ज़रूर लिखिए आप विदाउट फॉरगेटिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं ऐसी जगहों पर। ओके, और हाफ मार्क्स ऐसे डिडक्ट होके बहुत ज़्यादा मार्क्स आपके कट जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, आप सोचते हैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आए हैं। So this will be equals to 0 to pi minus x upon 1 plus sin 180 minus theta is sin theta dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सेम 1 plus 2 equals to I plus I is 2i equals to 0 to pi, और देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लिख देते हैं हम, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, 1-2 स्टेप जो है। x प्लस न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट था बाहर लिख दिया हमने 0 to पाई, और ये क्या आ गया 1/1 प्लस साइन एक्स। तो हमारा एम क्या था, न्यूमरेटर से x को हटाना ताकि इंटीग्रेबल फंक्शन में आ जाए। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, तो ये आ गया आपका पाई, सॉरी पाई क्यों, हाँ पाई यहाँ से आया था, 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 2i के इक्वल आ गया। सो
2i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया, 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस एक्स 1 बाई कॉस एक्स हो गया सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया आपका टेन एक्स डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये होता है टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स और लिमिट रख दी हमने क्या 0 टू पाई। तो ये हो गया 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस ब्रैकेट बना लीजिए 10 0 माइनस सेक 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज और इसको भी कर देते हैं, अदरवाइज इसके लिए एक स्टेप और लेना पड़ता है, 2 से इधर 2 को इधर ले आए। सो 1/2 10 180 साइन 180 बाई कॉस 180 साइन 180 0। सो 0 बाई और कॉस 180 -1 0 बाई -1 0 कॉस 180 -1 तो सेक 180 भी कितना होगा -1 10 0 0 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 0 1 तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो ये आ गया 1 + 1 2/2। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 1। कुछ भूले हैं फिर से एक बार चेक कर लो। 2i इक्वल्स टू ये था पाई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, नए उससे लिखना हमने स्टार्ट किया तो पाई को भूल गए, ये आ गया पाई। तो ये आ गया था यहाँ पर पाई ओके पाई। तो ये क्या हो गया पाई। सो द फाइनल आंसर इज पाई आंसर। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं। टू प्रूव दैट 0 to a f(x) gx dx इक्वल्स टू 2 times 0 to a f(x) dx if f(x) equals to f of a minus x and gx equals to gx plus g of a minus x equals to 4। तो इसको ये जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 to a f(x) gx dx इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ x की जगह हमने लिख दिया a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स dx। सपोज मैं इनको कोई इक्वेशन दे दूँ, इसको 1 और इसको 2, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस 2 इक्वेशंस। सो f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx और g a माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकंड 4 माइनस gx। इसको आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं। सो 0 to a ये हो गया 4 times fx dx माइनस सेपरेट कर दे रहे हैं इसको, और 0 to a ये क्या हो गया fx gx dx। ओके, और ये इसको आप चाहें तो i लिख लीजिए इसको ये। ओके, क्वेश्चन क्या था या फिर से आप लिख लीजिए 0 to a fx gx dx। ये इधर ट्रांसफ़र हो गया तो ये क्या आ गया, ये दोनों टर्म सेम हो गए, तो ये हो गया 2 times 0 to a fx gx dx इक्वल्स टू 4 times 0 to a fx gx। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आ गया 0 to a fx gx इक्वल्स टू 2 times 0 to a fx dx। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ओके, तो इजी सा था, कुछ नहीं था क्वेश्चन, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में आ गए तो आप देख के थोड़ा सा डर जाते हैं। ओके, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 और 21, 20 में तो आपका जो ऑड फंक्शन है उसको अप्लाई कर लेना है, तो फर्स्ट 3 टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और 21st में जो यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया मैंने उसी को यूज़ करके दोनों को ऐड कर देंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो होपफुली ये एक्सरसाइज आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खासकर मॉड्यूलस वाले जो क्वेश्चन मैंने बताया वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ओके।